Hello, hi. Welcome again to another session on AI. Learn AI and shape the future. So आज हम समझेंगे कि what is the overview of AI ML and data science and data monetization. So इन सब टर्म्स को समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि डेटा का डिजिटाइजेशन कब हुआ, डेटा का जनरेशन कब स्टार्ट हुआ. So let's start this journey with the, initiation of how the things started in uh, data digitization. So आज के एजेंडा में हम लोग कवर करेंगे digitization of data and its generation, AI ML for data science, building blocks of AI ML and कौन कौन से major algorithms थे जिन्होंने एआई में मशीन लर्निंग में इनिशियली दे जस्ट बिकम द वन ऑफ द हाईजैकर्स ऑफ इन इनटू एआई वर्ल्ड. सो लेट्स स्टार्ट. सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और द डेटा जनरेशन. सो डिजिटाइजेशन जो टर्म थी वो जो फर्स्ट कॉइन हुई मीन्स व्हेन इट हैव स्टार्टेड इट वाज अराउंड 2012 के अराउंड पर. बट अगर हम देखें 1980s में ही with the IBM mainframes and all those, so data was, they started collating the data in mainframes from 1980s onwards. So the digital evolution have initiated as the machines were there, but it evolved as the technology progressed. So I would say that in late 90s, so when with the the ERP evolution, तो ERP में भी जो इवोल्यूशन आया वो Y2K की जो वेव थी 2000 में, तो उसके बाद Deloitte and companies like Accenture and all those, so they initiated more into the second wave of ERP, which was known as it started in 2002. So all those things have started, as the technology progress, बिकॉज डेटा तो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, मैनुअल फॉर्म में था. डिजिटल फॉर्म में लाने के लिए उसको वी नीड द टेक्नोलॉजी इवॉल्व एंड टू बी अवेलेबल टू ऑल, बिकॉज टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हुई, इनिशियली बहुत सब चीज़ें महंगी थी, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन ईआरपी सॉल्यूशन हैव स्टार्टेड. So what has happened that ERP का licensing fee, ERP की customization. So एक ERP solutions में जितना data we have to gather, क्योंकि data को centralize करना पड़ेगा एक जगह, so it was too costly. So what has happened that when these company have initiated, so इसमें कुछ इन लोगों ने regulatories reports publish करनी शुरू करी, and with the more as the technology progress with the inception of cloud. So cloud term, if you think, the cloud term was initiated in around 2007, and then companies like Amazon, AWS, and other like Microsoft and others company which are quite Google, they're pioneer in cloud platform. So they have started building their own product. So in I would say in 2012 around, and from 2012 to 2014, so they developed their own product and they started selling ERP as a service, SaaS based, which is known as software as a service, SaaS based ERP solution on the cloud platform. तो वो क्या हुआ, वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल थे फॉर बिगर कंपनीज और स्मॉलर कंपनीज बोथ, बिकॉज उसमें एक तो लाइसेंसिंग कॉस्ट नहीं थी और ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ता था, और आपको जितना आप इस्तेमाल करते थे, जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म का मेजर एडवांटेज क्या है, पे एज यू गो, मीन्स जितना आप यूज़ करोगे उतना ही आपको पे करना पड़ेगा. तो इससे क्या हुआ कि इससे डिजिटाइजेशन में एक क्रांति, मीन्स इट वाज अ इवोल्यूशन इनटू द डिजिटाइजेशन. दिस हैज स्टार्टेड और कंपनी स्टार्ट एडवोकेटिंग फॉर digitization. So I would say that from 2012 onwards, BI came into picture,
and more data was getting collected. Because if you see, now let's move on to next slide. Like this is what are the, we talk about some of the implications as well in the digital transformation. Because हुआ क्या कि when this all data, because if we see that Oracle तो आज से बहुत साल पहले was developed, DBMS was initiated a long back, जब हम लोगों ने अपनी पढ़ाई भी करी होगी, बीटेक में हमने भी ओरेकल पढ़ा था, बट डेटा को इतना ज़्यादा वो यूटिलाइज नहीं कर सकते थे। सिस्टम्स मीन्स सॉफ्टवेयर सिस्टम थे, बट डेटा नहीं था उस टाइम पे। सो व्हेन द विद दिस इवोल्यूशन ऑफ डिजिटाइजेशन व्हाट हैज हैपेंड कि डेटा भी इकट्ठा होना शुरू हो गया, and then all these systems came into the picture, like data warehouse, how to extract the data. Because हुआ क्या कि डेटा इतना ज़्यादा जब डिजिटल फॉर्म में हो गया, तो देयर वर मेनी एरियाज वेयर द डेटा वाज, यू नो हम डेटा काफ़ी जगह से कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे वेब 4.0, इंडस्ट्री का डेटा, आईओ डिवाइसेस, डिजिटल सर्विसेज से, ट्रांजैक्शनल डेटा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कम्युनिकेशन चैनल्स। सो इतना जगह डेटा, ट्रांजैक्शनल डेटा इकट्ठा हो गया था, तो उसका एक मैकेनिज्म बनाया गया that we have to extract the data and put into the staging table, or we get coined as termed as a staging area. उसके बाद इस डेटा को क्या हुआ कि डेटाबेस में ट्रांजैक्शनल डेटा तो इनॉर्मस फॉर्म में था, फिर ETL, दैट इज एक्सट्रैक्ट एंड ट्रांसफॉर्म एंड लोडिंग द डेटा। सो इससे क्या हुआ, बड़े बड़े डेटा वेयर हाउसेज बनाए गए। जैसे कि आप देखते हैं कि फैक्ट्री में कुछ चीज़ें बनती हैं, तो जनरेशन बहुत ज़्यादा होता है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बट उसके बाद उनको स्टोर करा जाता है, तो उसको वेयर हाउसेज बोला जाता है। ऐसे ही डेटा में भी डेटा वेयर हाउसेज बनने शुरू हुए, जहाँ पे क्या हुआ, मीनिंगफुल डेटा, रिपोर्टिंग का डेटा वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके इन डेटा वेयर हाउसेज में डाला गया, विच वॉज वी कुड called as a clean data, or data which are more useful in generating the reports. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज के टाइम पर देखें, तो जैसे स्टोर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट, वॉलमार्ट है या रिलायंस का स्टोर मान लेते हैं। अब रिलायंस के स्टोर्स हर एक सिटी, हर एक जगह हैं। अब वहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं। अब अगर रिलायंस कंपनी को कुछ देखना है कि अच्छा मेरा ये प्रोडक्ट की क्या सेल हो रही है, ठीक है, तो वो उन सारे ट्रांजेक्शनल डेटा को उठा करके तो एक मीनिंगफुल प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे, जिसे कहते हैं डेटा वेयर हाउस। वहाँ से हम अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के व्यूज, अगर आप देखेंगे फ्रॉम दिस स्लाइड, सो फ्रॉम डेटा वेयर हाउस वी कैन ट्रांसफॉर्म दैट डेटा एंड क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ व्यूज फॉर आवर ओन एनालिटिक्स। सो हम जो है, हमारा जो मास्टर डेटा है उसको डिस्टर्ब ना करके, बिकॉज मास्टर डेटा हमारा बहुत इनॉर्मस फॉर्म में पड़ा हुआ है, एंड डेटा वेयर हाउसेज आर दी टाइम फ्रेम डेटा, कि मान लीजिए मेरे को 5 साल का डेटा चाहिए, 10 साल का डेटा चाहिए, उसके ऊपर मेरे को कोई एनालिटिक्स करनी है, मेरे को कोई चीज़ प्रेडिक्टिव एनालिसिस करनी है, मेरे को कोई फोरकास्टिंग करनी है। तो विद द डिजिटाइजेशन all these things came into the picture, and the DBMS tools like Oracle have evolved in a very big way. एंड विद द क्लाउड कमिंग इनटू द पिक्चर, ये और ज़्यादा आई थिंक बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होने लगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा। इसके बाद जो था, फिर डेटा का जो डेटा साइंस है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, लेट्स अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज विद दिस वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट। एंड बिफोर दैट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट इतना सारा जो डेटा इतनी जगह से आया, तो देर वर 5 V's विच वी हैव टू टेक केयर। सो व्हाट वर द 5 V's, लाइक अब जब हमारा डेटा इतनी जगह से आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ डेटा फर्स्ट, वॉल्यूम इतना ज़्यादा था। वेलोसिटी ऑफ डेटा, जैसे आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, वहाँ से भी डेटा आ रहा है, तो उसकी डिफरेंट काइंड ऑफ वेलोसिटी होती है। वैरायटी ऑफ डेटा, अलग अलग तरीके का डेटा आ रहा है, स्ट्रक्चर डेटा आ रहा है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आ रहा है। वैल्यूएबल, वेदर द डेटा इज वैल्यूएबल और नॉट। वेरासिटी, वेरासिटी इज मीन्स अनसर्टेन डेटा आता है, ऑथेंटिसिटी क्या है डेटा की। तो ये सारी चीज़ जो थी, ये एक बीच में लेयर बनाई गई। तो that layer what used to take care that whatever the data which is coming, so how to convert that the data which is available from different different channels, उसको valuable कैसे बनाया जाए। so we start capturing the data, उसको clean करा जाने लगा, उसको synthesize करा, and then
fruitful information is retrieved. So data warehouses या data lakes. तो data warehouses और data lake में difference ये है कि data lakes में after data warehouse data lakes is there. So data lakes में क्या है, different different तरीके का data available है. जैसे data warehouses में तो you are extracting the data and you are loading the data. And data lakes is like a lake where you have presentations, you have folders, file folders, you have doc file, you have Excel file, everything is there. But all that also stored in a very smarter form, in a vector form, where I'll just give you an example. Like अगर आप देखें गूगल में, अगर आप सर्च करते हैं तो व्हेन यू सर्च इन अ गूगल, तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ईमेल की बॉडी है उससे सर्च करके देगा. अगर आपकी जी ड्राइव पे कुछ डेटा पड़ा हुआ है तो वो उसके अंदर से भी सर्च कर लेता है. सो दैट इज another advanced feature of vector database which we will learn as we'll move ahead. So just we have to see that जो डेटा नॉर्मल रॉ पड़ा हुआ था उसको हमने डिजिटल फॉर्म में लाए. फिर हाउ डू वी हैव कन्वर्टेड दैट इनटू अ मीनिंगफुल डेटा जिससे हमारे को इतना ज़्यादा बेनिफिट हुआ. फिर डेटा का मोनेटाइजेशन होना शुरू हो गया. जैसे मनी का करेंसी का मोनेटाइजेशन, ऐसे डेटा का मोनेटाइजेशन होना शुरू हो गया. एंड विद दिस whatever activities were done, so we say that data became the new oil, or data became the oxygen into the digital world or upcoming AI world. And the data became the infrastructure asset as well, because data became very 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 important for the companies. So if we see the common data monetization models, क्या हुआ कि selling data का data was they started selling the data, कि थर्ड पार्टीज को डेटा दे दिया एंड सब्सक्रिप्शन बेस्ड डेटा देना शुरू कर दिया. फ्रीमियम मॉडल, कुछ कंपनीज ने क्या करा कि कुछ फ्री प्रीमियम मॉडल्स करे एडवर्टाइजिंग के लिए, टारगेट एड्स के लिए. लाइक इफ यू सी, लाइक होता क्या है कि वैसे जो टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं उन कंपनीज को कंपनीज टारगेट करती हैं जिन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना होता है. फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे कोई बहुत बड़ी गैदरिंग हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अ क्रिकेट मैच वेयर लैक्स ऑफ पीपल आर देयर, सो कंपनियां टारगेट करती हैं विद दी टेलीफोन ऑपरेटर्स, ऑपरेटिंग कंपनी, कि उस टाइम पर, बिकॉज दे न्यू दैट ऑडियंस इज देयर, 1.5 लाख ऑडियंस इज देयर एट दैट पर्टिकुलर प्लेस. तो वहां पे दे यूज टू डू दी टारगेट advertising. And licensing have started. Specific licensing was given to them. Partnership and alliances, data as a service also have started. Analytics, company ne, like Amazon, they started the analyzing the data. Like if you see on the Netflix, if you see on Amazon, like when you purchase something they recommend, so that recommendation is also coming from the in-depth analysis which they have done on the previous data, and then only they recommend. ऐसा नहीं होता है जैसे अगर हम कोई सामान, हम व्हेन वी स्टार्ट परचेजिंग ऑन अमेजोन, सो हमें रिकमेंडेशन ऐसे ही उठ करके आ जाती है. तो उसके पीछे कोई ना कोई एल्गोरिथम्स के थ्रू एनालिसिस करके देन दे कम टू अ पर्टिकुलर पॉइंट दैट व्हाट दे नीड टू शो टू देयर कस्टमर. ऐसे ही लीड जनरेशन होने लगी, बिकॉज व्हेन द डेटा वाज कैप्चर्ड, फॉर एग्जांपल फॉर एनी कंपनी व्हिच इज लुकिंग टू sell their product, so they are getting the leads from the data as well. So lots of things were done with the data monetization. And with this data science evolution happened. Like initially when the data was collected in the digital form, it was 010101, and on top of that different things were built, and the descriptive analysis has started as we grew into the the ladder of the digitization. So mean, medium, mode, different type of analysis they started. And these kind of analysis were also available when the data was in raw form, in the hard coded form. जो था जब पहले डिजिटल नहीं भी था तो भी ये एनालिसिस होते थे. तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस वाज देयर. आफ्टर दैट डायग्नोस्टिक एनालिसिस होना शुरू हुआ, जिसमें
प्रेजेंटेशन शुरू हो गई, डेटा का डायग्नोस होना शुरू हो गया, उसके बाद प्रेडिक्टिव एनालिसिस होनी शुरू हो गई, जैसे विद द डिजिटाइजेशन बिकॉज द डेटा वाज अवेलेबल विद द डिफरेंट एल्गोरिथम्स, it was very easy for here come the machine learning algorithms, और वहाँ से प्रेडिक्टिव एनालिसिस शुरू हो गई, जैसे कि सेल्स फोरकास्टिंग करना है आपको, किसी चीज़ के बारे में प्रेडिक्ट करना है आपको, सो वो सारी चीज़ें एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस शुरू हो गई कि मीन्स विद द डेटा व्हाट न्यू थिंग्स कैन बी एक्सप्लोर, forecasting and probability have started, and with the AI coming into the picture and the generative AI is quite common nowadays. So semantic analysis होने लगा, जिसमें कि अभी तक तो क्या था, हम प्रेडिक्ट कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ डेटा साइंस कि 2+3 और what should be there, but with the semantic analysis क्या हुआ कि the model started capturing the essence, and they started generating the data, which is also nowadays you have heard the RAG models, so retrieval augmented generation. So they retrieve the data and they augment, and then they generate. So they started generating the new data which was not there. So earlier it was more calculation based, but now with the semantic analysis coming into the picture, see the and generative AI coming into the picture, so things have changed a lot. And as the things with the big data and all those, so or it is getting day by day in a very smarter form. So this is all which I thought to cover today. In the next session, we will be, initiating the building blocks of AI ML, and we'll be understanding the basics of AI, how AI term coined, what we need to understand from a very basic concept of what exactly is the AI. So as we move ahead, we'll be learning more and more. I would say thank you. Thanks a lot for your time, and keep watching this space. And I'll try to, provide all these details in much more easier way to all of you. Thank you. Thanks a lot. Thanks for your time.